Good evening, you're watching To The Point. I'm Preeti Chaudhary. A very curious instance is unfolding where Rajasthan is concerned. Well, days after allegedly calling out his own party over women's safety in the assembly, Vidhan Sabha, a former Rajasthan minister, Rajendra Singh Guda, has made a very shocking allegation against the Congress MLAs and the Chief Minister, Ashok Gehlot himself. Today, he threatened to expose Gehlot and the corruption of the entire Congress Rajasthan unit. He flaunted what he said was a red diary outside the assembly. Take a look at this detailed report, and then we're going to be joined by the minister himself. High drama in the Rajasthan Assembly. Rajendra Singh Guda, a minister till Friday, now an outcast within the Congress, is physically removed from the assembly on Monday by marshals. The MLA broke down outside the assembly after he was forcibly evicted from the house. देखिए, उसमें डायरी में कुछ भी नहीं था, तो इन लोगों को सारे मंत्री मेरे ऊपर पड़ गए थे, मुझे नीचे गिरा लिया गया था, फिर मैं डायरी नहीं दे रहा था, तो उन्होंने मुझे लाते गुस्से मार के, डायरी में कुछ नहीं था तो क्यों निकाल रहे थे। पूरी सरकार उस डायरी के ऊपर टूट के पड़ रही थी और वो तो दृश्य उन्होंने हटा दिए, वो सारे के सारे। जब वो गुंडागर्दी करने लगे हाउस के अंदर मेरे साथ, जिस तरीके से डायरी छीनने के लिए, मैं तो टेबल कर रहा था। Earlier, when the assembly convened, Guda approached Speaker C.P. Joshi, flashing a red diary, claiming it contained some incriminating proof against Chief Minister Ashok Gehlot. This sparked an uproar with BJP MLAs joining Guda in the well. जब वो डायरी में कुछ भी नहीं था तो मुख्यमंत्री ने मुझे भेज के, और वहाँ क्यों भेजा जब कुछ था ही नहीं तो, और मुख्यमंत्री ने वो मेरी से डायरी मंगाई। उसके बाद में आज सारे मंत्री उस डायरी पर इस तरीके से जैसे भूखे भेड़िए पड़ रहे हैं, वैसे सारे मंत्री और विधायक मेरे ऊपर पड़ गए। कम से कम 30-40 कितने लोग थे, सारे मेरे ऊपर पड़ गए और मुझे जिस तरीके से दबा लिया उन्होंने। और वो डायरी क्यों छीन रहे थे, मैं डायरी को छोड़ना नहीं चाह रहा था। Claiming that he only wanted the government to take action against increasing rape cases in the state, Guda said he was being wrongly accused of siding with Gehlot's rivals. For the BJP, Guda's outburst has become ammunition to target the Gehlot government in the election year. मुझे तो समझ नहीं आता कि एक लाल रंग की डायरी, जिसको लेकर के आज जब राजेंद्र गुढ़ा जी वहां विधानसभा में पहुंचे थे, तब जिस तरह से उनसे डायरी को छीनने के लिए कांग्रेस के नेताओं में होड़ मची थी और जिस तरह से जबरन उनसे डायरी छीन करके फाड़ने की कोशिश की गई, कहीं न कहीं दाल में कुछ लाल है कि नहीं, काला जरूर है। Guda was sacked from the Gehlot government on Friday evening, hours after he targeted the state government over law and order in the state. जाना चाहिए, सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना। Guda's rebellion has embarrassed the Congress, which recently managed to put a lid on the rivalry between Chief Minister Gehlot and his former deputy Sachin Pilot. The Grand Old Party is still stuck in a desert storm. Bureau Report, India Today. All right, viewers, we're going to be joined right now by Rajendra Singh Guda, but I just want to give our viewers a little bit of a background on who is Rajendra Singh Guda. Well, he was one of the BSP MPs, if you remember last time around, the last election where the Congress just about made it, but was just about a little short. One of the 6 BSP MLAs who joined the Congress and bailed the Congress out, he was one of those. Considered very close to Ashok Gehlot, not just this time around. The last time around Ashok Gehlot came into power, the same individual was standing with Mr. Gehlot. At that point of time, he was again with the BSP and he had joined in to the Congress. Interesting. Just to give you a bit of context on who is Rajendra Singh Guda. He's joining us right now. Rajendra Singh Guda साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। आज आप जो ये रेड डायरी लेके गए थे, आपने बोला था कि ये वही रेड डायरी है जो सीएम साहब, जो गहलोत जी हैं, उन्होंने आपको फोन किया था जब ईडी की रेड्स हो रही थी
और उन्होंने बोला था जैसे तैसे राजेंद्र गुढ़ा जी ये डायरी निकालो। आप कह रहे थे कि आपने ये डायरी निकाल ली और इस डायरी में सारा करप्शन का सारा चिट्ठा है, कांग्रेस का जो राजस्थान यूनिट है और सीएम तक का अशोक गहलोत जी का भी। आज उस रेड डायरी के जो पन्नों में से पढ़ दीजिए राजेंद्र गुढ़ा साहब, पूरा चिट्ठा साफ कर दीजिए, क्या करप्शन के चार्जेस हैं इस रेड डायरी में? मैं तो पब्लिक करने के लिए गया था, हाउस के अंदर टेबल करना चाह रहा था उसको। स्पीकर साहब ने हमें इजाजत नहीं दी, मैं तो टेबल कर रहा था। फिर कांग्रेस के सारे मंत्रियों ने, विधायकों ने मुझे चारों तरफ से घेर कर मेरे से छीन ली वो डायरी। कांग्रेस के विधायकों ने घेर लिया और छीन लिया, पर गुढ़ा साहब फोटोकॉपी तो होगी, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो पूरी सरकार को हिला सकता है, गिरा सकता है, सीएम की कल्पेबिलिटी, जहां पर आप खुद कह रहे हैं कि करप्शन चार्जेस जिसमें सीएम तक आपने अलेज किया है इस डायरी में थे, उसकी फोटोकॉपी नहीं रखी आपने? आपको बताना चाह रहा हूं, ओरिजिनल कॉपी टेबल कर रहा था स्पीकर साहब के सामने और उसके बाद में सारे लोग टूट के पड़े और वो छिल ले गए। अब कॉपी में कुछ न कुछ आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए उसके अंदर जानकारी करता हूं, जहां कुछ कोई चीज निकलेगी तो उसको लेके फिर लड़ूंगा, फिर पब्लिक की जनता के बीच में जा रहा हूं। तो फोटोकॉपी नहीं है आपके पास, आप कह रहे हैं? एक इतना बड़ा डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी तो राजेंद्र गुढ़ा साहब रखनी चाहिए थी कि नहीं? चलिए एक चीज ये बताइए, आप पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप खुद कांग्रेस के नेता हुए, आपने असेंबली ही क्यों चुनी अपनी ही सरकार के अगेंस्ट बोलने के लिए? मणिपुर मुद्दा नहीं था जिसके बारे में बोल सकते थे? अगर कोई शिकवा गिला होता वुमेन सिक्योरिटी को लेके, कांग्रेस कह रही है डायरेक्ट बात करते आप सीएम साहब से। असेंबली के बीच खड़े हुए पार्टी को एम्बैरेस कर दिया, इसीलिए आपकी सैकिंग हो गई है, कह रहे हैं। मुझे मेरे विधानसभा के हमारी बहन बेटियों ने राजेंद्र गुढ़ा को 3 बार विधानसभा में भेजने का काम किया है और इस विश्वास के साथ, कास्ट पर वोट नहीं पड़ता, पार्टी पर वोट नहीं पड़ता, राजेंद्र गुढ़ा के फेस पर वोट पड़ता है, इस उम्मीद के साथ कि हम उनकी खुशहाली के लिए कोई अच्छे काम करेंगे। और जब हमारा प्रदेश महिला दुष्कर्म में नंबर 1 आ गया, रोज हमारी महिलाओं में असुरक्षा का भाव हो गया, जिस तरीके से रोज आए दिन नए नए केस हो रहे हैं और हमारे प्रदेश के नंबर 2 के मंत्री शांति धारीवाल जी बच्चियों के दुष्कर्म के मामले में बोलते हैं मर्दों का प्रदेश है, तो इस बात के ऊपर मैंने इतना सा कह दिया तो क्या कह दिया मैंने? राजेंद्र गुढ़ा साहब बहुत सही काम कर रहे हैं कि आप आवाज उठा रहे हैं महिलाओं के सुरक्षा के लिए, पर एक चीज बताइए, जो केस की बारे में आप बात कर रहे हैं कि एक के बाद एक दबा के केस हो रहे हैं, उनमें से तो 2 केस आप पे भी हैं सर। किडनैपिंग का केस है, एक महिला को तंग करने का केस है, हरासमेंट का केस है, तो जिसके लिए आप लड़ रहे हैं उनमें से एक चार्ज पे तो आप खुद ही बुकते हैं सर। हाउस में मंत्री परिषद में भी चर्चाएं हुई हैं, मेरे इससे पहले भी मुकदमे लगाए, 5 महीने पहले मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। और किस मामले में? एक महिला जिसकी 2 बच्चियों की शादी थी, 10 दिन बाद में उस महिला के एक व्यक्ति, बदमाश आदमी ने उसके पैसे रोक लिए, महिला सुसाइड करने की स्थिति में थी। मैंने मेरी जेब से 3,84,000 रुपए उस महिला को दिए, उसके बेटियों की शादी कराई और मैंने उस आदमी को कहा भैया पैसे इसके दे दे महिला के। उसके बाद में मेरे खिलाफ अपहरण का मुकदमा होता है, उसमें प्रताड़ित किया जाता है, गिरफ्तारी का भय दिखाया जाता है, दबाव बनाया जाता है, तलवार लटका के सर पर लटका दी जाती है। ऐसे काम एक बात थोड़ी 50 किस्से रोज देखते हैं। गुढ़ा साहब एक चीज बताइए, आपने ये पिछला चुनाव नहीं, जब आपने कांग्रेस का समर्थन देके सरकार बनवाई थी, आप जो 6 बीएसपी एमएलए थे उनमें से एक थे, उसकी पहले बार जिस बार अशोक गहलोत जी ने वापस जब आए थे उस वक्त तब आपने उनका साथ दिया था। अब समझ नहीं आ रहा है आप कर क्या रहे हैं? बीजेपी ज्वाइन करेंगे या क्योंकि बहुत अनपॉपुलर हो गए हैं अपनी सीट पर इसीलिए थोड़ा ड्रामा कर रहे हैं, या बात क्या है इसमें, मुद्दा क्या है? देखिए प्रीति जी, आप शायद ज्यादा नहीं जानते, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भाजपा के सामने लड़के आता हूँ
और बीजेपी के पिछले राज में एक रास्ते झाम के छोटे से मुकदमे में मुझे 40 दिन के लिए अंदर कर दिया था, 40 दिन के लिए। और उसके बाद में भाजपा के राज में मेरे घर टूटे थे, मुझे जेल में डाला था। भाजपा से लड़ के आता हूं, कांग्रेस तो मेरे 4 चुनावों से है ही नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी फाइट ही भाजपा से है। और हमने राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस की 2-2 बार गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाने में मदद की, 6-6 बार राज्यसभा के चुनाव में वोट डाला। हम कांग्रेस के थोड़ी थे, हमने 2-2 बार इनके कहने से राष्ट्रपति का वोट दिया, संकट काल में इनकी मदद की। और आइए मेरे बेटे की शादी में, मेरे बेटे के जन्मदिन पर पिछले 9 सितंबर को गए तो बोले घुड़ा नहीं होता तो आज अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं होता। और आज क्या हो गया इतने टाइम के बाद, भाजपा में नहीं जाऊंगा। एक और चीज हो रही है, क्या हो गया तो वो कह रहे हैं कि असेंबली ही क्यों मिली थी बोलने के लिए, बाहर भी बोल सकते थे, पर वो बात अलग है। एक चीज बताइएगा गुड़ा साहब, आप जो महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि बहुत पीड़ित हैं महिलाएं राजस्थान में, आप उनके चैंपियन बनना चाहते हैं, पर सर जी एक वीडियो सुनाऊंगी आपको। अब मुझे बताइए क्या ये चैंपियन जो महिलाओं का बनना चाहता है शोभा देता है उसको? जरा सुनिए एक बार। कौन सी है? चलिए बताइएगा गुड़ा साहब, कटरीना कैफ के जैसे जो उनके चीक्स हैं, उनके गाल हैं, वैसी रोड बनाना चाहेंगे। हेमा मालिनी बूढ़ी हो चुकी हैं। अब जो आदमी बोलता है कि महिला पीड़ित हैं राजस्थान में, क्या वो ऐसी भाषा का यूज करेगा? देखिए प्रीति जी, आपको छोटी सी बात बताऊं, मैंने तो कभी मैंने तो कैटरीना जी की मूवी नहीं देखी और मूवी देखता भी नहीं हूं। और माँ भवानी जगदम्बा का उपासक हूं, मेरा इष्ट आराध्य देव माँ भवानी जगदम्बा है। और आपको बताना चाह रहा हूं, मैं जितना हमारी माता बहन बेटियों का राजेंद्र गुड्डा जी जितना रेस्पेक्ट करता है और मेरे चेहरे के ऊपर लोग वोट डालते हैं। और एक ही चीज बताना चाह रहा हूं, इस मामले के अंदर ज्यादा सी ये आप हेमा मालिनी जी की बात कर रहे हो, और हेमा मालिनी जी की उम्र और मेरी मदर की उम्र लगभग बराबर होगी शायद। दूसरी बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये फिल्में मैं कभी देखता भी नहीं हूँ, किसी दर्शक ने कह दिया सड़े, और जो मेरे सामने बैठा था वही चीज मैंने दोहरा दी और उसका मैं जवाब दे चुका हूँ। हेमा मालिनी और कटरीना कैफ की बात हमने कहा की सर, ये तो आपने की थी, आप ही की बात आप ही को सुनाई है हमने। वापस एक और बात सुनाते हैं गुड़ा साहब। आप कह रहे हैं कि आपने अशोक गहलोत जी का पूरा साथ दिया, आप कांग्रेस के साथ हैं और आपने सिर्फ आवाज उठाई क्योंकि महिला शक्तिकरण के लिए आवाज उठाई। अब ये भी सुन लीजिए। तो बस पासू सरकार बनू, कांग्रेस में मंत्री बनू, बस अभी कांग्रेस का माइन दरी उठावा को टेम आवे जना ने कुछ ऐसा मारो है कांग्रेस और पास ओ दू चुनाव में बताओ भी बहन जी को दोबारा टिकट नहीं आयो। पहला ले टिकट बस पासू दियो, जीत्यो, ओ दू टिकट लिया बहन जी को ले और पास ओजू चुनाव जीते और ओजू कांग्रेस में ओजू मंत्री ने खेल में कोई कमी है क्या? राजेंद्र गुड़ा जी सुन लिया ना, आप तो अपने आप को काफी बड़े खिलाड़ी कह रहे हैं। बीजेपी से कांग्रेस से मायावती से वापस कांग्रेस, मौके का फायदा उठाएंगे। देखिए मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, बसपा का कैंडिडेट 2013 का मेरे जो चुनाव लड़ा उसके मात्र 1100 वोट आए थे मात्र, जिसमें उसकी पार्टी के वोट थे या जाति के थे या कैंडिडेट के वोट थे 2013 में। मेरे पार्टियां नहीं है वहां, मैं राजेंद्र गुड्डा खुद के फेस पर वोट पड़ता है। कांग्रेस के लोग जो वोट लेते हैं 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है, महात्मा गांधी नेहरू जी है जी, मौलाना आजाद है, सरदार पटेल है, चाहे सेकुलर के नाम पर वोट मांगते होंगे, चाहे गरीबों के नाम पर या SC ST के नाम पर, किसानों के नाम पर, हजार चीजों पर वोट मांगते हैं।
जी। बीजेपी के लोग चाहे हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांग ले, चाहे मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांग ले, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान, चाहे योगी मोदी हो या आरएसएस की आइडियोलॉजी है उस पर वोट मांग ले, राजेंद्र गुड्डा अपने फेस पर वोट मांगता है। चलिए। और मेरी जो फिल्में होती है, मेरे विधानसभा क्षेत्र में हमारी पिक्चर है, जो उसका हीरो भी मैं हूँ, विलेन भी मैं हूँ, उस पिक्चर का कॉमेडियन भी मैं जी। हूँ, उस पिक्चर के अंदर हमारे उस फिल्म का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी मैं हूँ। चलिए, इसमें बहुत मेरे बढ़िया लोगों सर। के बीच में चलिए, बिल्कुल चलिए, बहुत friendly बढ़िया। रहता हूँ, और मैंने कोई कॉमेडी में कोई बात कह देता हूँ तो मीडिया वाले उसका कोई बात का पता चलिए, वो बात कॉमेडी में करी थी, चाहे बसपा में हो, भाजपा में हो, कांग्रेस में हो, वोट तो आपके नाम पे पड़ना है, क्योंकि आप ही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हीरो हैं जो आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने का। आई वांट टू कट अक्रॉस टू आवर spokespersons at this point of time. Joining me is Rukshamani Kumari, spokesperson Congress, and Nimisha Gaur, spokesperson Bharatiya Janata Party. Nimisha Gaur ji, आपने सुना होगा, you must have heard Rajendra Guda. Does the BJP really want to support somebody like that, who says that red notebook that I had, I don't even have a photocopy, but it could bring down the entire Rajasthan government? The same man who says he stands for women empowerment has used the vilest language for Katrina Kaif and Hema Malini. The same man who says I will be in Congress, BJP or BSP. Why support him? Preeti, I want to speak after one by one. Number one thing, एक असेंबली में वुमेन जो कंडीशन है राजस्थान में उसकी आवाज उठाई। सेकंड स्टेज पर राजेंद्र गुड़ा को सस्पेंड कर दिया जाता है, और सस्पेंशन के साथ में वो लाल डायरी का सीक्रेट लेकर के असेंबली में आते हैं, और हॉरिबल सिचुएशन जो राजस्थान के असेंबली में आज हुई है सबने देखी है। प्रीति, इज वेरी क्लियर, समथिंग इज देयर और बिगेस्ट स्टोरी बिहाइंड द लाल डायरी। पर निमिषा गौर जी, मैं आपसे फिर से वही सवाल करती हूँ। आप कह रही हैं कि एक आदमी ने महिला शक्तिकरण के लिए अपनी आवाज उठाई, इसी आदमी ने 2 महीने पहले बोला था कि मैं रोड बनाना चाहता हूं राजस्थान में जो कटरीना कैफ के गालों के जैसे हो। हेमा मालिनी अब बहुत बूढ़ी हो गई हैं। क्या इस आदमी की आप बात सुनेंगी जब ये महिला शक्तिकरण की बात कर रहा है? We are listening the voice of the NCRB datas. We are not forcing the Rajendra Guda. We all are. BJP is continuously asking to the government as well as the Congress leaders what's going on in the state. Ms. Gaur, that's a good point. But that is a good point that you're looking at the NCRB data and not hearing the voice. Right. But and not hearing the voice of a man who himself has insulted women many a times over. Clearly, he's a man who smacks of political opportunism, who says himself that he's in one party, one election, the other party, next election. But I want to cut across to Ms. Kumari, who's also joining us, spokesperson Congress. Ms. Kumari, the sheer fact, forget about this man in question. Why don't you look at the data? It's on the record, no? Where Rajasthan is concerned, NCRB data, it's highest in terms of crime. And I'll ask you another question. You keep talking about, at the center, you are talking about gagging the opposition where the parliament is concerned. By sacking someone who raises the voice for what's happening, against of what's happening in your state, you've sacked him. What's the messaging? Double speak in your own Congress. I don't think so. I think it's a personal matter of the Congress party. And I think the decision, whatever the Congress party has taken, there is a discipline in any party. I think if in the BJP somebody does this, I think they had to take a call. And whatever the matter is, I think you are taking to a different political level. I think it can be sorted. Madam, Ms. Kumari, the matter is political because it's a sacking of a minister. Number 2, how is women safety a personal matter of the Congress? Number 3, when you yourself say that, Ms. Kumari, when you yourself say that at the center, the voice of the opposition when it's standing up for Manipur is being gagged, you have gagged a voice which was standing up in your own Vidhan Sabha. No, this was not the first time. The concerned minister has given a lot of other chances before also, and the party took a call because there is a discipline in the party, and it is Vidhan Sabha. There is a way to speak. If you have something against the party, or if you want to say there has to be discipline in the party. Does anybody in the BJP do that?
So if the party has taken a call, I think we as a spokesperson of the party, we have been told that this is party's decision. And Okay. if the chief minister has taken a call, I think we regard, and they will all speak. I mean, the party has taken a decision, and I think Okay, we Nimisha all- Gaur, I want to bring you in. You know, Preeti, leave alone Preeti, look, everything. ask her, I want to ask you, ask no, her. madam, I want to ask you a question. And the question is, for a man who himself has used derogatory language against women, who himself says, I have no record of this alleged red diary that I, used today in the Vidhan Sabha. I don't have a copy of it. I can't tell you what was inside it. Should leaders of the level of Mr. Gajendra Shekhawat and the top senior leadership of your Rajasthan BJP unit have actually come out and held press conferences in his support, talking about the red diary and talking about this man? This man is looking for its 2 minutes in the sun. If nothing is in the Lal diary, then why Congress leader was behaving so horribly in the assembly? Why all want to cap that Lal diary from the Guda if nothing is there? If anything is there, then why they remove the diary from Dharmendra Rathor's residence with the local Madam, then shouldn't there be a administration? photocopy if it is such a document that can bring down the Rajasthan government? That is Where the is the Rajendra Guda's photocopy? matter now. I'm just asking you. You're quoting, ma'am, you can't be Rajasthani, selective. Every No. Rajasthani wants to know what is the inside the Lal diary. Because government is there, Congress government is there. We are asking because if nothing is there, then why are you so fearful? Why are you behaving like this? You suspend immediately, Rukshmani ji. Okay. Why Ms. don't Kumari, you suspend that if minister? there is nothing in He this said, Lal diary, your because there is minister no said photocopy Shantilal of this Lal Dhariwal. diary, the man in Look, question Preeti, doesn't Preeti, know what's please. inside this Preeti, Lal please diary. allow me to I speak. want to ask you a Preeti, question, please Ms. allow me to Kumari. speak. Why Rukshmani go out ji, and try and grab why this don't you copy? Why go suspend and that try and minister? grab He this red said, diary? "ये प्रदेश तो मर्दों का प्रदेश है." Why don't you suspend him? Okay, fine. You suspend Rajan Guda. Okay, what one is in second, the Ms. Lal Kumari, the diary? question is for Madam you. Nas. There is a corruption charge. Can I just get Ms. Kumari? The question is for you. Madam, it's not... Okay, she can't hear me, it seems. All right, I appreciate both of you women for joining us. Thank you there. But it is bizarre on what's going on right now in the state of Rajasthan. At one end, classic doublespeak where the Congress is concerned. At the center, in Parliament, you have the Congress standing up and saying that the government is trying to gag their voice, suspend their, leaders who are speaking up for Manipur in the House. Where the Rajasthan own government is concerned, its own leader stood up in Vidhan Sabha, voicing the concern where women's safety is concerned in the state, and he's sacked. However, on the other hand, the same man has made statements derogatory to women. He's a man who openly says he's in one party one season, the other party the next. Wherever he has a better opportunity, he skips. Should his word be actually taken as the gospel truth by the BJP? Both sides.